Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Coffee with CEO basically is a product of a CEO Club Pakistan, and management holds one of the finest leadership development institute in Pakistan. So today we are sitting with a very the famous company Apla, the Eastern pharmaceutical laboratory in Pakistan. So this company is being led or managed by the Mahwish Siddiqui. She is a CEO. तो आज इनसे हम बात करते हैं कि what are their struggles, उन्होंने क्या struggle किया, इस positions coveted positions पे कैसे आए, क्या challenges face किए और क्या आगे future को envision करती हैं. तो thank you very much Mahwish for this coffee. बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के. Please share with us a struggle being a woman, especially the women who reached this pinnacle of their success. Share your struggle, your pain points and then your pride points. देखिए स्ट्रगल जो होती है इन दिस कंट्री इट्स प्राइमरीली एज जेंडर. ये जब आप इन दो जगहों से आगे निकल जाते हैं then they take you seriously. Prior to that, so my struggle I think was primarily where my age was, because I joined the industry about 50 to 20 years back. Mashallah. So when I joined, I was in my 20s, and so you're not taken as seriously as you would. But still, you are in 20s. You seems to be. Of course, yes. I am. If I'm not wrong, I'm not been that long. But it's to be taken seriously is one thing. Gender की वजह से. Obviously, we are a pharmaceutical manufacturing plant. Mashallah. So I wanted to have acceptance from the labor level up. So I decided that when I came, that I will work in the stores. I first worked in the stores with my own labor. And when those men were comfortable and they understood that I am somebody that they are reporting to, I'm not a man or a woman, I am basically a professional, so they got over that. I am a chartered accountant by profession. Wow, you are a chartered accountant. Yes, I am a CMA and a CPA. CPA. You are a finance lady, yeah? That's right. So my objective was to be to find acceptance in terms of my skill set. Mashallah. And not to be seen as a woman who is, because एक वो तरीका होता है कि people don't like to take instructions from females. Some people have this issue as well. So this was an impediment. लेकिन very soon I felt कि there was a lot of acceptance, whether it was in my own factory, whether it was in my own organization, whether it was in my pharmaceutical association because I was fighting elections, I was in the association, or whether it was in the Ministry of Health. वहाँ पे भी मेरी काफ़ी प्रेजेंस थी. तो I found acceptance, I found respect, and they were quite supportive after that initial. What are the key three challenges, impediments, especially 2-3 चीजें वाकई आपको इरिटेट करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे? As a woman or as a woman entrepreneur, as a woman leader. क्योंकि होता ये है कि women's की ना challenges हैं सोसाइटी के अंदर mindset change के स्पेशली वाले से. मेरे ख्याल से जो मुझे अब जाकर to be very honest इतने impediments नहीं मिलते. अब नहीं मिलते. और क्लियर है. जी हाँ, मुझे अब लगता है कि और शायद मैंने इतना वक्त गुजार लिया है शायद इस वजह से, लेकिन now they know that what I'm bringing to the table. तो वो मुझे उसी हिसाब से इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इसका जो ओपिनियन है वो कम बोलेगी लेकिन रेलिवेंट बोलेगी. ठीक है. एंड ऑल्सो एज वुमेन वी परहैप्स डोंट नीड, हमारा इतना ये बड़ा ईगो नहीं होता, तो हमें ज़रूरत नहीं होती इतने सारे वक्त की या उस चिट चैट की जो काफ़ी दफ़ा हमारे कॉलीग्स को ज़रूरत पड़ती है. तो हम जाते हैं अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, एंड आई एम एबल टू अचीव. क्योंकि मेंस के अंदर वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर मोर डिस्ट्रैक्टेड एंड वीमेन आर मोर फोकस्ड. यस, एब्सोल्युटली. एंड बिकॉज यू सी वी हैव टू बेसिकली जगल अ लॉट. As women, I'm sure men also juggle a lot, but women have to juggle their families and their work. So based on that, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा एक्चुअली ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होता है, सेकंड लास्ट, लेकिन मैं इसको अभी आई पुट दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू जस्टिफाई जैसे एक वीमेन और वीमेन सीईओ की बात हो रही है इस वक्त, तो एक वीमेन की सीईओ के वाले से एक फैमिली और वर्क बैलेंस में डू यू जस्टिफाई?
जी, it is a challenge. Yeah. And there is a level of guilt that every I think woman goes through when she's at work or when उसकी she's at फैमिली home. उसके So, but I think because you see, I have always worked. I have worked right out of university, and I've never stopped working. I've been married, and had my pregnancies, and I've delivered children, and I've been working constantly. पूरा प्रोसेस मैंने constantly work करा है, and this is something that my sons also see. माशाल्लाह And they are also, see, you need to have a very supportive system. True. Whether it is your father, as I mentioned, or your husband, or even your children. True. So they support me. I delegate. They accept that delegation. I have a support system. And that support system is what allows me to be able to function. And so when I'm at work, I can give my 100% to my work. And when I'm at home, I can give my 100% to my home life. But it is a struggle, of course. No, jumping to the Appla. Please share with us the journey of Appla. आपने Appla को ज्वाइन किया और Appla की बताएं और स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से यू आर द वॉइस ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड देन Appla. तो क्या इस वक्त क्रिटिकल चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग क्योंकि इतने र्यूमर्स हैं जी। कि प्राइस हाइक हो गया गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान की एक परसेप्शन है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खा गई पैसे 500% उनकी प्राइस हाइक हो गई तो हाउ डू यू जस्टिफाई द outside जो media perception and the reality and the role of DRAB especially and the challenges of pharmaceutical industries. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए दो इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं. एक आपका जो है दवाई की इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल, दूसरा जो है ना ऑयल एंड गैस. ठीक है ना, अगर ऑयल की थोड़ा सा पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सब लोग बुरा भला कहते हैं गवर्नमेंट को. उसी तरीके से दवा की कीमत अगर तब्दील हो गई तो लोग गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं. प्रॉब्लम ये होता है कि फिर गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे कंधों से बंदूक चला रही होती है. नाउ दिस इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री वेयर वी नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना, हमारा एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक इक्विपमेंट, एक एक टेस्टिंग और सारा इंपोर्ट बेस्ड है आपका रॉ मटेरियल आपका. बिल्कुल, हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं. इंपोर्ट हो रहे हो हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं. अब देखिए ना, अगर फर्ज कीजिए डॉलर वहाँ पे होता जहाँ पे था 3 से 4 साल पहले, एक अलग सिनेरियो था. अब आप खुद समझ सकते हैं डॉलर कितना अनस्टेबल है. उसके अलावा 17% आपने सेल्स टैक्स लगा दिया. उस 17% का जो सेल्स टैक्स लगाया है कस्टमर पे शिफ्ट होना है. वो खूबसूरती उसकी ये है कि अभी तक उसका रिफंड का मैकेनिज्म ही नहीं बना. यानी कि हम अगर चाहें भी अप्लाई करना रिफंड के लिए हम नहीं कर सकते. तो और आपको पता है इस वक्त इन्फ्लेशन का क्या हाइपर इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स. रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस कोविड की वजह से लॉजिस्टिक्स इंपेयर हुई हुई हैं. इवन चाइना से इवन इंडिया से जो आता था चीप. तो जब रॉ मटेरियल की डिमांड सप्लाई में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लॉजिस्टिक्स है नहीं, शिपिंग है नहीं, आने जाने का खर्चा बढ़ गया, उस पर उन्होंने ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ा दिए. ठीक है, इन्फ्लेशन लोकल अलग है हमारी. तो ये मल्टीपल जो एक आपकी फिर ये आप इतनी बुरी तरह जकड़ जाते हैं. यस. और इस वक्त उन्होंने फिर जाहिर है हम IMF की वजह से उन्होंने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो आगे से रिटेलर्स हैं, उनको भी इसी दायरे में ले आए हैं. वो अलग स्ट्राइक पे चले गए. तो इतना इन्होंने कंजेशन मैस क्रिएट हो गया है. और इस मैस से निकलना और इसके जो इफेक्ट्स हैं ना वो 6-8 महीने तो मिनिमम जाएंगे और अभी ऑलरेडी आ चुके हैं क्योंकि आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन डिक्लाइन में जा चुकी है. यानी कि लोग इतने यूनिट्स प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता. कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. मैंने खुद इतनी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करी है. अमॉक्सिसिलिन जो एक बेसिक एंटीबायोटिक आपकी है जो कि एक प्रेग्नेंट औरत और एक बच्चा यानी सेफेस्ट है, उसकी शॉर्टेज हो चुकी है. पैरासीटामोल की शॉर्टेज हो चुकी है. इवन पैनाडोल नहीं मिल रही थी. अब वो उसकी तो आप देखिए ना, ये आप नहीं कर सकते. आप या अगर गवर्नमेंट इतना ही समझती है कि ये इंडस्ट्री इतना कमा रही है तो भैया आप ही लगा लें फैक्ट्री ना, तो फिर आप भी कमा लेंगे. 3 चीजें बताइए महविश. 3 things you need to focus कि I have in the future I am going to meet with the health minister in Islamabad. तो 3 ऐसी चीजें बताएं मे बी हम आपकी आवाज़ बन सके, उनका कम से कम कानों तक पहुंचा सके. 3 things you want to turn around this industry. So I would first of all say कि you should tell us what standards you want us to achieve. ठीक है, but then don't limit us by saying कि the cost of putting up those standards has to be borne 100% by us with no facilitation by the government. Okay. So ये तो possibility ही नहीं है कि हम लोग basically sorry. Please carry on. हाँ, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करें और हमें कहा जाए कि हम आपकी कोई फैसिलिटेशन नहीं करेंगे, आपके मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन में रहेंगे, आपका रॉ मटेरियल बढ़ता चला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, हम आप पे एडिशनल टैक्सेस भी लगा देंगे, आप अपनी कीमत भी नहीं बढ़ा सकते पूरे साल.
और आप कमाइए भी और नहीं भी कमा रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपको कीमत में ही रह के सप्लाई देना है। और बाय द वे अगर आप नहीं रह सकते हैं उस कीमत के अंदर और अपनी सप्लाई रोक देते हैं तो वो भी आपको पिनलाइज करते हैं जी। और अगर आपने कोई भी अपना कॉर्नर कट किया इस इंडस्ट्री में और अगर ज़रा सा भी आपकी प्रोडक्ट किसी वजह से भी सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो गई, स्टोरेज की वजह से किसी ने दुकानदार ने धूप में भी रख दी, तो वो सीधे मुझे, ठीक है, अरेस्ट कर लेंगे। मतलब इन्होंने इतना ड्रैकोनियन जो ड्रैप्स के जो लॉस बनाए हैं, क्योंकि ड्रैप इज अथॉरिटी जिसके अंदर सारी, क्योंकि दिस इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। तो इतनी रेगुलेटेड आपने इंडस्ट्री करी है, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा ज़र मुबादला ला सकते हैं, लेकिन आपने स्टैंडर्ड्स अगर कहें ना कि आपके यहाँ से तुम्हें जाना नहीं नीचे, ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, लेकिन देन यू कांट हैव इट बोथ वेज। वो कहते हैं कि हंसने भी नहीं देते और रोने पे भी नहीं, हाँ। नहीं, रोने पे भी पाबंदी है। कुछ ऐसा ही है। हंसने देते हैं और रोने पे भी पाबंदी है। थैंक यू फॉर डिस्पेलिंग दिस परसेप्शन के बहुत पैसे कमा रहे हैं फार्मास्यूटिकल जैसे रियल एस्टेट वाले पैसे कमा रहे हैं जरा, तो दीज आर द स्टोरीज अदर वे अराउंड। मुझे ये बताइए कि बीइंग अ वुमन व्हाट इज लीडरशिप, एक सीईओ के लिए व्हाट आर द 3 कॉम्पिटेंसेस डू यू थिंक टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली? As a generally I would say obviously you have to have a vision, ठीक है, you need to have integrity, very good, and you need to be inclusive, ठीक है। आपको अपने लोगों को बेसिकली वो कुव्वत देनी होती है कि वो खुद से सेल्फ स्टार्टर्स हों, empowered human resource, एब्सोल्युटली। एज अ वुमन आई फील कि हमारा इमोशनल क्वोशंट बेहतर होता है कभी कभी, मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर जेंडर, you know, our EQ is a little more developed. So, you know, when I am interviewing people, when I am listening to their problems, when they actually have genuine issues, if you deal with people's genuine issues, then they are always there to support you. True. In the company, you know, when push comes to shove. किसी बच्चे को जब आप इंटरव्यू करते हैं, आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, टॉक्स देता हूँ, कौन सी 3 कॉम्पिटेंसीज हैं जो आप समझते हैं कि बच्चों में डेफिशिएंसी है या उसके अंदर वो लैक करते हैं, जिनको ट्रेन करके डिग्री लेकर MBA BBA करके आते हैं तो लैक कॉम्पिटेंसेज, वो 3 कॉम्पिटेंस क्या हैं ताकि वो डेवलप करके आपके पास जॉब के लिए अप्लाई करने आए और जिनको आप हायर कर सकें? एक्चुअली मुझे लगता है कि आजकल, बल्कि मुझे लगता है पिछले 5 से 8 साल में जो लोग आते हैं दे वांट टू गेट रिच क्विक, इंस्टेंट माइंडसेट, तो वो चाहते हैं कि आज 6 महीने आपके यहाँ काम करेंगे, फिर स्विच करेंगे, 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के लिए वो स्विच करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी है रोलिंग स्टोन जो है ना, वो मैं चाहूंगी हायर करना किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, ना मुझसे कोई हायर करना चाहेगा। तो आप अगर कहीं पे काम करें तो आप टिक के काम करें, पहले कुछ महीने तो सिर्फ सीखने के होते हैं, फिर आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। तो अगर आप टिक के काम करें, कंपनी को लॉयल्टी दें, तो कंपनी भी आपको लॉयल्टी देती है रिवर्स में। बट अगर आपका मकसद यह है कि हम 2-3 महीने पे या 2-3 साल पे मैं जंप मारूं और मैं अपनी पोजीशन को इस तरह करें, तो देखिए इस तरीके से तो दुनिया नहीं चलती। सब्र है उनके अंदर, जो पेशेंस है वो पहले। कॉम्पिटेंस क्या देखती हैं बच्चों में हायरिंग के वक्त? एक तो हो गया ना ये क्विक रिच माइंडसेट है, सेकंड और थर्ड क्या समझते हैं कि इजाज़ ये चीज़ मैं बच्चों में देखना चाहती हूँ? मुझे कॉम्पिटेंस मिलता है औरतों में, मैं बहुत ऑनेस्टली कह रही हूँ आपसे, बिकॉज शायद हमारे लड़के जो हैं वो कम पढ़ना चाहते हैं या वो कम ग्रेड्स के ऊपर पास होना चाहते हैं। देखिए डिग्री तो उसके पास भी है, लड़की के पास भी, लड़के के पास भी है, लेकिन जो लड़की है ना उसने शायद ज़्यादा हाई ग्रेड्स अचीव करने का उसको घर पे भी कहा गया और मे बी उसकी अपनी नीड थी। मेरे पास जब लड़के आ रहे हैं ना, जैसे कि मेडिकल ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, फार्मासिस्ट भी आ रहे हैं, सो दे आर नॉट सो मोटिवेटेड, दे आर नॉट सो डेडिकेटेड, व्हाइल द वुमेन वेदर दे आर माइक्रोबायोलॉजिस्ट और whether they are pharmacists, they are very diligent और वो अपनी जॉब को बहुत सीरियसली लेते हैं। और ऐसी बात की शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे, वे डू यू सी पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री एंड द स्पेशली एप्ला जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 years? देखिए आई फील कि व्हाट वी जस्ट वेंट थ्रू डिसरप्शन, मेजर डिसरप्शन, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी करंट एग्जिस्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकेंगे। मुझे लगता है ये दवाएं होंगी ही नहीं 5 से 10 साल बाद। सो आवर डिलीवरी मेथड्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल चेंज द होल सिनेरियो। देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स, देयर कुड बी चिप्स, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट, जैसे आ गया डायबिटिक्स को लगाया होता है, वो ऑटो उनका चेक करती है, उनको वो इंसर्ट कर देती है वो 3 डोज। सो मेरे ख्याल से तो ये डिसरप्शन जो अभी आया है ना, ये कंटिन्यू करेगा एंड
and perhaps we will not exist. We don't need even doctors even. हाँ, so we will not exist in our current form and we will have to modify our behavior. हमारी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस मुल्क की है कि हमने टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करा है जो हमें करना चाहिए था, जबकि हमारे पास बड़े ही अच्छे पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन हमारी मैसिव है. अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लें, you know, whether it is the sciences, health technology, health tech में तो we can go leaps and bounds. मेरे एक दोस्त हैं CCL फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर शहजाद, वो अभी हम मिलके ना एक मार्च में कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस हेल्थ टेक के ऊपर ना, इसीलिए कि यार ये हेल्थ टेक्नोलॉजी को आगे लेके आए. अच्छा, आगे चलते हैं जी. मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, व्हाट इज योर मैकेनिज्म, क्योंकि बीइंग अ वीमेन आपने बताया ना चैलेंजेस हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं स्ट्रेस को, जो कोपिंग स्ट्रेटजी? एक्सरसाइज, social media. Sometimes you literally have a situation and you need to I need to block it. Okay. और मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ. आजकल स्क्रीन टाइम खा गया बच्चों को, बल्कि बड़ों को भी पकड़ लिया उसने. But you need to be distracted because इस वक्त जो business environment है और आप भी लोगों से मिलते हैं, आपको पता होगा ना, it is a very difficult environment to work in because आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप 10 और काम कर रहे हैं जो अपने को बचाव के लिए कर रहे हैं इस वक्त. मैं भी गुस्सा आता है. क्यों नहीं आता? कैसे मैनेज करते हैं? हाउ टू वेंट आउट, कैसे करते हैं इसको? गुस्सा जब आता है तो आप उस वक्त वक्ती तौर के ऊपर तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा बहुत दबा लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि इसको जो क्रक्स ऑफ द मैसेज है वो डिलीवर कैसे किया जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग अपसेट एंड गेटिंग एंग्री. आप ऑर्गेनाइजेशन में CEO के रोल पे है ना, तो ये रोल घर में भी CEO होता है कि या वहाँ घर में कुछ चेंज होता है कि ये गुस्सा सारा जाके घर में निकलता है या घर का गुस्सा दफ्तर में निकालते हैं? नॉट एट ऑल. आई थिंक women are excellent at that, रोल प्लेइंग. घर में आप जो है वो घर के हो जाते हैं और ऑफिस में आप ऑफिस हो जाते हैं. यहाँ पे तो नहीं निकलता गुस्सा कि आप उसको तो ये भी मेरा एक स्टाफ मेंबर है, क्योंकि औरतों को हो जाता है कि मैं CEO हूँ यार, आई एम CEO. अलग ही फायरवर्क्स होते हैं ना. वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आपके 2 डिफरेंट रोल्स में कर रहे हो. जैसे मैंने CEO का नाम चेंज कर दिया. CEO डज नॉट स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव, CEO स्टैंड्स फॉर चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर. हाँ, that's true. अगर CEO डिप्रेशन में तो होल कंपनी इज डिप्रेशन. CEO एनर्जाइज्ड है तो द होल कंपनी इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम CEO. एब्सोल्युटली. क्योंकि ट्रिकल डाउन ऊपर से आता ना. आगे चलते हैं जी. हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हैं? Happiness is living on my own terms. Okay. Surrounded by my friends and family. That's happiness for me. आपकी अपनी टर्म्स हैं? मेरी टर्म्स हैं. वरना तो जिंदगी वैसे होता है ना. बिकॉज देखिए ना कि कुछ लोगों की टर्म्स ये हैं कि जी मुझे इतना सक्सेस करना है चाहे मैं रात के 12 बजे तक काम क्यों ना कर रही हूँ, लेकिन मेरी वो टर्म्स नहीं है. बड़ा खूबसूरत शेर है गुलजार का, मेरा फेवरेट राइटर है इंडिया का. वो कहता है कि 2-4 कदम चलने दे ऐ जिंदगी, तेरी मर्जी पे तो बरसों चले हैं. यानी कि कुछ अपनी मर्जी से भी जी ले, वरना तो सारी जिंदगी लोगों की मर्जी से जीते इंसान. आगे चलते सक्सेस के की 3 वर्ड्स क्या है, पंच लाइन्स जो होती हैं सक्सेस, योर मंत्र ऑफ सक्सेस? My mantra of success is to build, you see, if it's work, are you talking about work or are you talking about family? दोनों बिजनेस के कामयाबी को कैसे 3 लफ्जों में डिफाइन करते हैं? देखिए, एक तो you need to have work life balance. Okay. For example, I don't want my people to work very long hours because I know when they go home late, they will have disturbance in their family. Their wife will be upset, their children will be upset. The next day when he's going to come, he's not going to be an effective person for me. तो मैं अगर इसको निचोड़ दूंगी तो it's not going to work. So you have to have a work-life balance. Second चीज़ ये कि we need to have a very clear goal and vision. Clarity of ठीक है, और वो trickle down पूरा होना चाहिए कि सबको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है. Third चीज़, I feel कि for success you have to be you have to very clean and clear communication. Okay. Because if we don't have communication and also flip side accountability, then I don't see in anything in life you cannot succeed. बड़ी प्यारी बात की है. मुझे ये बताएं कि एक CEO रिसर्च कहती है कि बहुत 50 बुक्स पढ़ते हैं एनुअली एंड द लीडर्स आर द रीडर्स बेसिकली. ना CEO इज अ लीडर. तो कौन सी आपकी 2-3 किताबें हैं जो आप समझती हैं दिल के पास हैं और रिकमेंड करती हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट, वीमेंस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, या कौन सी बुक्स हैं जो आप पढ़ती हैं जो रिकमेंड करना चाहेंगे? 3 किताबें. 3 मैं शायद ना करूं, लेकिन मैं एक बता देती हूँ. मैंने इतनी सारी पढ़ी हैं, लेकिन जो आर्ट ऑफ वॉर है बाय सन त्जू, आई फील दैट इज इट, बिकॉज उसने आपको जिंदगी के और वर्क के दोनों के सारे एंगल्स, हाँ, एंड वो बड़े सिंपल तरीके से कह देते हैं एक बात और उसमें बड़ी गहराई है. how to deal with a negotiation, how to deal with confrontation,
हाउ टू इनफैक्ट इवन रन अ टीम. सो उसने बहुत चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दी हैं. उसकी एक लाइन है, मैं तो उसको तो रोज तावीज़ की तरह पढ़ता हूँ. कहता है जब आप कमजोर हो तो ताकतवर शो करो, और जब ताकतवर हो जाओ तो फिर अपने आप को वीक शो करो. हाँ, बड़ी सिंपल चीज़ है. इतनी बेसिक चीज है और इज मैजिकल. ये बताइएगा कि डिसीजंस इनकी में मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन जो, बिकॉज सीईओज हैज टू मेक डिसीजंस ईच डे, छोटे डिसीजंस, बड़े डिसीजंस, एनी डिफिकल्ट डिसीजन इन योर लाइफ. फ्रॉम माई वर्क परस्पेक्टिव मैंने 2-3 डिसीजंस लिए थे पिछले 10-15 साल में. एक तो ये था कि जब हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने काफ़ी इम्पीड करना शुरू किया, तो मैंने डिसाइड करा कि हम उनको कोर्ट ले जाएंगे. एंड मैंने बहुत सारी कंपनी से बात करी, दे सेड नहीं आप अपने रेगुलेटर को कोर्ट नहीं ले जा सकते. मैंने कहा जब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है. वी वेंट टू कोर्ट, वी हैड सक्सेस एंड द रेगुलेटर फाइट किया. फाइट करे बगैर आपका काम नहीं होता. आप अगर प्लान करें और इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें, अगर आप राइट में भी, इंटेग्रिटी भी ऑब्वियसली ज़रूरत होती है. उस तरीके से मैंने डिसाइड करा था. जब आपको याद है अर्थक्वेक वगैरह आया था 2005 में आई बिलीव, उसके बाद आई रियलाइज कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, दे हैव नो इंश्योरेंस. और हमने उस वक्त रियलाइज़ किया जो पैसा मार्केट में था वो डूब गया, बिकॉज उनके पास कोई इंश्योरेंस ही नहीं थी. देयर इज़ नथिंग. एंड हमने एडवांस पेमेंट सिस्टम शुरू किया, विच इज़ पेनफुल एट दैट टाइम, बिकॉज हर कंपनी के कुछ ना कुछ पैसा मार्केट में होता है. मैंने फुली एडवांस पेमेंट पे कर दिया उसको स्विच, विच वाज डिफिकल्ट टू डू एट दैट टाइम, बट वी डिड इट. थर्ड थिंग आई रियलाइज्ड वाज कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई कि अगर हम बैंक से पैसा लेके काम करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट, बिकॉज हमें नहीं पता इंडस्ट्री किस तरह चल रही है, रेगुलेटर कैसे चल रहा है. सो आई डिसाइडेड टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ द बैंक्स एंड हम इस वक्त कम्प्लीटली डेट फ्री हैं. सो these were all very big decisions. And I felt कि this was a challenge to deliver on, कि अपने वर्किंग कैपिटल पे चलना. मैंने करा, लेकिन मैंने से सीखा भी है कि अगर आप कोई चीज़ डिसाइड करें, उसको प्रॉपर्ली प्लान और इम्प्लीमेंट करें, तो यू कैन डू इट. वो कहते हैं जी कि जो होता है ना, बिजनेस इज ऑल अबाउट डिजिट्स, एंड द सीईओ शुड बी द डिजिट सेवी. एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सीईओ के लिए 2 या 3 क्रिटिकल कौन सी चीज़ें आती हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रीड आउट करते हैं? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फ्रॉम सीईओ पर्सपेक्टिव, जब सीईओ के आगे क्योंकि आपने बोर्ड में अपनी वो प्रेजेंट करनी होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 क्रिटिकल वेरिएबल्स क्या हैं फॉर अ सक्सेस ऑफ अ कंपनी? I mean, obviously आप प्रॉफिटेबिलिटी की तो मतलब इट्स अ गिवन. प्रॉफिट जैसे आजकल कैश फ्लो की बड़ी होती है कि कैश फ्लो. मैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी जो ना जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. मैं तो जीपी ही मेरे लिए पर्टिनेंट होता है, बिकॉज आई कंट्रोल माई कॉस्ट. दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल. सेकेंड चीज़ मेरा जो होता है कि जो मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा है, ROI फॉर टेरिटरी वाइज, दैट इज समथिंग कि मैं उस टेरिटरी में कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ, कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स देन उसके बाद तो फिर एक ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है. ठीक है, जिसमें जो खासकर जो कैश फ्लोस बहुत ज्यादा आजकल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईओ, क्योंकि कैश जो होता है ना, आपको बस सैलरीज देनी है, पे ऑफ्स करने हैं आपने, वो तो डेली है, वो तो डेली आपको कैश फ्लोस मैनेजमेंट करना वो बहुत बड़ा हेडेक होता है. ठीक है. लास्ट में मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर द यंग पीपल. आपने खुद ही बोला कि पाकिस्तान इज अ यंग पीपल कंट्री. 25% जो ना 25 ईयर्स एज, जो कि 65% पॉपुलेशन है. इतना बड़ा बैंडविड्थ है और कोई 15 करोड़ बच्चे बनते हैं. क्या मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लास्ट 2 years है ना, दे हैव बीन वेरी डिफिकल्ट ऑन आवर यूथ. हम लोगों पे तो थे, लेकिन यूथ पे, बिकॉज वो एक बड़ी ऐसी एज होती है जिसमें कि बच्चा बेचारा, मतलब यंग टीनेजर्स जो हैं या 20 समथिंग जो है ना, वो अपनी एजुकेशन डेवलप हो रही होती है, उनकी प्रोफेशनल करियर डेवलप हो रहा होता है. ये डिसरप्शन उनके लिए बड़ा पेनफुल था. तो मैं समझती हूँ बिल्कुल उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जॉब्स नहीं लग रही. तो मैं समझती हूँ कि द मैसेज इज़ कि हमें उन्हें डरना नहीं चाहिए या उनको जो है ना डिप्रेस नहीं होना चाहिए इस पीरियड में, बिकॉज मुझे लगता है ये डिसरप्शन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा. और इस डिसरप्शन का इस्तेमाल करते हुए उनको अपना शायद रास्ता तब्दील करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़, हम लोग अगर अडेप्ट नहीं करेंगे ना तो ख़त्म हो जाएंगे. अडेप्टेशन जो है ना, हमने इसके बाद करनी पड़ेगी हमें. थैंक यू महविश. कोई लास्ट में कोई जाते जाते कोई आपको अदब से कोई ताल्लुक है, कोई कथा, कोई पोइट्री, कोई पीस ऑफ लिटरेचर जो आप समझती हैं? क्योंकि जो होते हैं ना, मैं समझता हूँ सीईओज को अदब के साथ, क्योंकि कल्चर आर्ट इज द सोल ऑफ अ सीईओज लाइफ. क्योंकि सारी जिंदगी में बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की बात तो होती रहती है, एक सोशल प्रॉफिट भी होता है ना. कोई है आपके पास, कोई दिल के पास कोई जुमला, कोई लाइन, कोई मोटिवेशनल लाइन, एनी?
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, मतलब हैं तो बहुत बहुत सारी, है। लेकिन हम एडिट कर देंगे, हम नहीं करेंगे, एडिट कर लेंगे कोई जो आपको दिल के पास गुनगुनाते हैं। गुनगुनाने, हाँ मुझे एक्चुअली गुनगुनाने का तो बहुत शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है जो मैं आपसे शेयर चले हम ऑफ द लाइन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, इसका बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। मेरा टेक अवे 2-3 चीज़ें हैं जो इनकी मैंने एक स्लिप्स ऑफ टंग से होती है ना, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो नंबर 1 कि सबसे पहले कि वीमेन लीडरशिप के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बंदा डेवलप करता है उसका EQ है, इमोशनल कोशेंट है। जब तक आपके पास इमोशनल कोशेंट, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होगी, यू कैन नॉट सक्सीड एट वर्क एंड अ लीडरशिप रोल। सेकेंड जो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की वो अडेप्टेबिलिटी एंड टू द डिसरप्शन है, क्योंकि अगर आप डिसरप्शन को, चेंज को आप अडेप्ट नहीं करते तो यू आर फिनिश्ड। तो आपने ये 3 करना। और तीसरा उन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं वर्कआउट करती हूँ और जॉगिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये आजकल ख़वातीन के लिए है जो आइडल लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं, तो दे शुड बी वेरी एक्टिव। फिजिकल जो बॉडी है और माइंड है इसको आपने अपना टेक केयर करना है। इजाज़त दें सी यू टुडे के हमारे ऑफिशियल पेज पे, यूट्यूब पे, और आप अपना इंशाल्लाह अपकमिंग बुक में भी ये सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे और सुनेंगे, देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।